Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, Spoken English Part 2. I have adopted a unique way to make all of you fluent in spoken. My purpose is that everyone of you should be able to describe something, to improve the vocabulary, and to have the fluent spoken English. So now I start from the first topic, how to polish shoes. Today I'm going to narrate 4 topics. Number 1, how to polish shoes. Number 2, how to sharpen a pencil. I will describe it, that how you can describe something, how you can narrate it. And number 3, how to mend a puncture. And number 4, how to tie a tie. So I start, how to polish shoes. Akram always polishes his shoes himself. He first of all cleans off the dirt or dust by using clean damp rag. Damp meaning moist, gila kapda. And then applies polish on the shoes evenly over the upper part as well as edges. बिल्कुल इक्वली आराम से तमाम तरफ से इक्वली जो है ना अप्लाई करता है पॉलिश. He inserts his left hand into one shoe and rubs its upper surface with brush. वो अपना लेफ्ट हैंड जो है वो शूज के अंदर दे के फिर राइट हैंड के साथ फिर वो उसकी ब्रश के साथ सरफेस जो है ना वो रब करता है. द मोर ही डज द शाइनर इट्स सरफेस बिकम्स. ही कंटिन्यूअसली वाइप्स टिल इट बिकम्स फुली ब्राइट. उसको वाइप करता है हत्ता कि फुल ब्राइट हो जाता है. He removes extra polish from shoes so that his desk may be saved from being spoiled. अगर कहीं कोई एक्स्ट्रा पॉलिश लगी होती है उसको रिमूव कर देता है ताकि उसके कपड़े खराब ना हो. Now he buffs to make it more shiny. अब उसके ऊपर बफ मारता है ताकि इसको और शाइनी जो है ना वो बनाए, चमक आ जाए उसके अंदर, ये ब्राइट हो जाए. If they are leather shoes, he rubs a bit petroleum over the top with a rag to prevent क्रैकिंग इन द लेदर. अगर ये लेदर शूज हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल जो है ना वो करके कपड़े के साथ उसको रब करता है. उससे क्या उसका फायदा ही होता है कि चूंकि ये लेदर की होते हैं तो उसमें क्रैक नहीं आते. नेक्स्ट, हाउ टू शार्पन अ पेंसिल. सलमान इज अ स्टूडेंट. ही नोज वेल हाउ टू शार्पन पेंसिल नाइसली. ही होल्ड्स इट इन हिज राइट हैंड, प्लेसेस इट्स वन एंड on his index finger, this is called index finger, and holds tightly with the rest of his fingers. बाकी ऐसे पकड़ता है तो rest of his finger उसको पकड़ लेता है. He presses it with thumb and inserts it into the sharpener's hole. ठीक है, अपने थंब के साथ उसको प्रेस करता है और शार्पनर के होल में करता है, इंसर्ट करता है. He cuts wood bit by bit and continues spinning it round to cut its all round sides equally. वो साथ साथ राउंड करता जाता है, उसको घुमा रहा है, उसको स्पिन कर रहा है और उसकी बिट बाय बिट उसकी वुड जो है ना वो उसको रिमूव कर रहा है. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज कंटिन्यूड. He goes on removing the wood till the lead appears. वो तब तक उसको करता रहता है जब तक उसके अंदर से lead जो है ना वो appear ना हो जाए. He sharpens the lead to a fine point. वो तब तक करते जब तक उसकी फाइन पॉइंट बन जाता है, यानी एक उसकी नोक जो है ना वो बन जाती है. That is called a tip. This whole activity he does on the garbage can so that the cutting pieces may be thrown in it. जब भी ऐसा कर रहा होगा तो किसी गार्बेज कैन के ऊपर खड़े होके पास खड़े होके उसको करता ताकि उसका सारा जो रिमूव है उसका जितना भी किया उसने कटिंग द पेंसिल है वो उसके अंदर थ्रो कर सके. नेक्स्ट, हाउ टू मेंड अ पंक्चर. पंक्चर कैसे लगाते हैं देखिए, क्वाइट simple to narrate it. That's why I'm using present definite tense so that everyone should know that how you can describe it. Aslam is puncture expert, I mean mechanic. He, by using tools, removes the punctured bladder out of rubber tire or rim and inflates it a little. यानी वो जो रिम होता है और रबर टायर होता है उसमें से उसको बाहर निकालता है और उसको इन्फ्लेट करता है, उसके अंदर थोड़ी सी हवा भरता है चेक करने के लिए. He dips or immerses it into tub
and presses it to find out the point where bubbles are rising. उसमें हवा भर के उसके बाद उसको डिप करते हैं, इसको इमर्स भी कहते हैं, उसके पानी के अंदर उसको डिप करते देखता है कि कहां से बबल जो है वो आ रहे हैं. इट इज अ पंक्चर्ड स्पॉट फ्रॉम वेयर द बबल्स आर कमिंग. वो पंक्चर स्पॉट है. व्हेन ही फाइंड्स ही मार्क्स इट एंड लेट्स इट डिफ्लेट. और उसको मार्क कर लेता है, उसके बाद उसकी हवा निकाल देता है, डिफ्लेट कर देता है. He rubs it with sandpaper, roughens its surface, and applies a thin film of vulcanizing solution glue on the tube, as well as piece of rubber that is to be pasted on the tube. जब वो उस पर हवा निकाल के उसके बाद उसको वल्कनाइजिंग सोल्यूशन भी लगाता है और साथ जो है ना उसको सरफेस को बिल्कुल रफ जो है वो करते हैं. उसके लिए वो सैंड पेपर जो है ना वो यूज करता है. और एक पीस उसने ऊपर लगाना होता है रबड़ का, उसको भी रब करता है, दोनों को वो रबड़ रब करता है, उसके ऊपर फिर कोई ग्लू टाइप लगाता है. He dries it up a bit and places the rubber piece or bladder and presses it hard till it sticks tightly. उसके ऊपर थोड़ा सा उसको ड्राई करता है, फिर उसको उसके पीस को जो है ना रबड़ का जो पीस है उसको ऊपर रख के उसको अच्छी तरह दबाता है, वो हद तक अच्छी तरह उसके साथ जो है वो स्टिक हो जाए, चिपक जाए. Now the punctured process is over. He inserts the tube back into rubber tire and inflates it. वो वापस उस पे रबर टायर में उसके अंदर ट्यूब डाल के उस पे फिर दोबारा हवा भर देता है. The punctured is done. This process is over. And last, how to tie a tie. एक टाई आप कैसे जो है ना बांधते हैं. Adnan ties a tie. He raises the shirt collar and drapes the tie around the neck. यानी सबसे पहले वो कॉलर ऊपर करेगा और ड्रेप कर देगा नेक के इर्द गिर्द टाई को. यहाँ पे he puts the skinny part, skinny end, or he puts the wide end on the skinny या narrow end that is called and makes a cross. जो एक उसका वन पार्ट जो है that is wide end होता है, उसको फेस एंड भी कहते हैं, और दूसरा स्किनी एंड जिसको नैरो एंड भी कहते हैं. तो जो वाइड एंड है उसको ऊपर करता है और जो स्किनी एंड है उसको नीचे करके ऊपर ऐसे उसको क्रॉस की शक्ल में वो बना देता है. The wide end extends about 12 inches below the narrow end. ये जो हमारा नैरो एंड है इसके नीचे तकरीबन 12 इंच नीचे वो हैंग कर रही होती है जो फेस एंड होता है. He grips on the meeting point of both ends and crosses the wide part over the skinny part. ये यहाँ से ऐसे पकड़ता है जहां से उसने क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद उसके रैप करता है, उसके ऊपर ना क्रॉस करता है. He passes the face side from behind the knot point. This is called the knot point. अब उसको उसके बैक से वो लाता है, यहाँ से पीछे से गुजार के, ठीक है, वो उसको सामने लेकर आता है. He grabs it but keeps the index at the knot point. यानी वो यहाँ से लाता था लेकिन ये जो नॉट पॉइंट है इसके अंदर यहाँ पे जो है उसके अंदर वो रखता है ताकि उसके अंदर एक होल जो है ना वो बना रहे. Now he crosses the wide part over with the side facing out. He pulls the wide end through the opening gap down and keeps the loop at the front. ये देखिए ऐसे करके उसके बाद बैक से लाएगा, ये जो होल बना हुआ है इसके अंदर से गुजार के उसको नीचे तक वो ले आएगा. Holding the dangling parts with one hand. यहाँ से वो dangling parts के हाथ से वो पकड़े रखेगा एक साथ से. He slides the knot carefully up toward the collar with the other hand until snug. ऐसे फिर वो जो हमारा जो स्किनी पार्ट है उसको नीचे खींचेगा, ठीक है, और ये नॉट को ऊपर की तरफ वो ड्रैग करेगा हत्ता कि वो स्नग हो जाए, पूरा कंफर्टेबल भी हो जाए इस तरह उसमें, और यहाँ तक टॉप तक आ जाए. सम पर्सन मेक द नॉट टाइट आल्सो. कुछ लोग इसको टाइट करते हैं, कुछ इसको स्नग करते हैं, ठीक है. देन लोअर डाउन द कॉलर, फिर वो कॉलर को लोअर डाउन कर देता है, तो ये टाई जो है ना वो हो गई. These are the 4 points or 4 description you can say in by using the present definite tense I have described here in this lecture. I hope that inshallah you would like my this series. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.